बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग में कोर्स कोड 8612 यूनिट 7 पढ़ेंगे, टीचिंग प्रोफेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले चंद अशार मदीना मुनव्वरा के हवाले से पेश करना चाहूँगा कि ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बां, तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। जहाँ उशाक बसते हूँ वो बस्ती उनकी बस्ती है। जहाँ पे ज़िक्र उनका हो वही महफिल मदीना है। और शरफ़ मुझको भी हासिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा दिल भी मदीना है। और इसी तरह एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं। तो आज हम टीचिंग प्रोफेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के हवाले से पढ़ते हैं। टीचिंग प्रोफेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Globalization is the process of integrating the nation states by removing or minimizing the restrictions on the movement of material resources. Globalization जो है ये एक process है of integrating the nation's state by removing or minimizing the restrictions of the movement of material resources, financial resources, labor, technology and ideas. ये उन पाबंदियों को ख़त्म करने का नाम है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मटेरियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, लेबर है, टेक्नोलॉजी है और आइडियाज़ हैं। It stands for outward oriented policies which are supposed to benefit all the countries of the world and also create certain problems in that process. Third, though it is predominantly an economic phenomena, अगरचे ये एक इकोनॉमिक फिनोमिना है, देयर आर अदर डायमेंशंस एज वेल एंड इन ए वे इट इफेक्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर असरअंदाज होती है। एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन एनी इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन has its implication for this sector as well. एजुकेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इन एनी इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की मईशत में, यानी किसी मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा किरदार है। आप ये देख लें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो एजुकेशन पे है और स्किल पे है। एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ इट्स इम्प्लिकेशंस, और ग्लोबलाइजेशन के इसके अमल दरामद हैं फॉर देयर सेक्टर एज वेल, इस सेक्टर पर भी। और ग्लोबलाइजेशन के हवाले से हम देखें कि टीचिंग प्रोफेशन जो है अब ग्लोबलाइजेशन के हवाले से हम बात कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे टीचिंग प्रोफेशन को बड़ी अहमियत दी जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जो लेक्चर्स दिए जाते हैं पूरी दुनिया जो है वो उनसे फ़ायदा उठा रही है।
اور ایجوکیشن جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اور گلوبلائزیشن کے پروسیس سے نہ تو اس بات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس مادی وسائل کتنے ہیں، مالی وسائل کتنے ہیں، لیبر کتنی ہے یا ٹیکنالوجی کتنی ہے. اس میں انٹرنیشنل لیول پہ جب لیکچر دیے جاتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں خواہ اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. The aim of education is to achieve overall development and enlightenment of life. ایجوکیشن کا اوورال مقصد یہ ہے کہ ٹو اچیو اوورال ڈیولپمنٹ، کہ ہم مکمل طور پر ترقی حاصل کریں، اینڈ انلائٹنمنٹ آف مائنڈ، اور اپنے ذہن کو روشن کریں. براڈن دا ویژن، ہماری سوچ بڑی ہو جائے، ہم چھوٹا سوچنا چھوڑ دیں، ہم بڑی سوچ رکھیں. یہ ایجوکیشن کی بدولت ہے. جیسے ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے، نگاہ رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب. کہ تعلیم انسان کو ایک بڑی سوچ دیتی ہے، براڈن دا ویژن اینڈ کریکٹر بلڈنگ، اور اس کی کردار سازی کرتی ہے. کیسے کردار سازی؟ کہ تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کہ ہم میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ علم ہی سے برا بھلا جانا، علم ہی سے برا بھلا جانا، علم ہی سے خدا کو پہچانا، علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ آدمی ہی نہیں. تو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ علم سکھاتا ہے، which can be beneficial to the individual himself، جس سے ایک شخص کو انفرادی طور پر فائدہ ہوتا ہے، اینڈ ٹو دا سوسائٹی، اور پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، اینڈ ٹو دا نیشن ایٹ لارج، اور ایٹ لارج پوری قوم کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب ہر شخص جو ہے وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کرے گا، وہ پڑھا لکھا ہوگا، تو اوورال اس شخص کا تعلیم حاصل کرنے سے اپنا بھی فائدہ ہوگا، اس معاشرے کا بھی ہوگا، اور پوری قوم کا فائدہ ہوگا جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے. ٹو اچیو دس گول، the role of teacher and teacher educator is important. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹیچر اور ٹیچر کے کردار کو بہت بڑا رول نظر آتا ہے. ان دی ایج آف گلوبلائزیشن، اس گلوبلائزیشن کے زمانے میں چینج از سو ریپڈ، تبدیلی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، دیٹ دا ایجوکیشنل سسٹم has to keep itself abreast with the latest development. The impact of globalization on teacher education and the manner in which the system should respond to the needs of globalization can be studied under the following headings. گلوبلائزیشن کا ٹیچر ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو مندرجہ ذیل ہیڈنگ کے ذریعے ہم ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی کانٹینٹ آف ایجوکیشن. یہ کیا ہے؟ دا فاسٹ ڈیولپنگ اسٹاک آف نالج اینڈ the need of its continuous updating has also initiated. No longer an education confined to a particular period of a life. A key to the 21st century, learning throughout life will be essential for adapting the evolving requirement of new generation and for better
mastery of changing time from the rhythm to the individual existence. इसमें कंटेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये है कि हमारा नसाब जो है तालीम का किस तरह का होना चाहिए, इस तरह और हमें कितनी तालीम हासिल करनी चाहिए, ये फिर हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मेरे ज़हन में आ रहा है। आप फरमाते हैं कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यानी गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। तो इसमें भी यही बात बताई गई है कि वक्त का तकाजा ये है कि सारी ज़िंदगी इंसान कुछ न कुछ सीखता रहे। इसके बाद है इक्विटी एंड एक्सीलेंस। An important component of globalization in relation to education is the need for producing quality manpower that can successfully face the competition in the world. अब मौजूदा दौर का या ग्लोबलाइजेशन का तकाजा ये है कि हम क्वालिटी मैन पावर जो है वो तैयार करें ताकि वो वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको जानें और पूरी दुनिया में जो मुकाबला हो रहा है उसमें वो शामिल हो सकें। दिस वुड इम्प्लाई सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन मटेरियल। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम बेहतरीन बनी नौ इंसान के लिए जो मटेरियल है उसको का इंतखाब करें। एंड गिविंग देम एजुकेशन टू दी हाईएस्ट क्वालिटी, और उनको हाईएस्ट क्वालिटी की तालीम दें। यानी हमें लोगों का इंतखाब करना होगा, अच्छे लोगों का जिनकी अच्छी सोच हो, जो अच्छे अंदाज में सीख सकें और उनको आला क्वालिटी की तालीम देनी होगी। क्वालिटी एंड एक्सीलेंस हैव बिकम द वॉच वर्ड्स ऑफ द न्यू मिलेनियम एवरीवेयर। हर जगह पे क्वालिटी और एक्सीलेंस यानी बहुत अच्छे अंदाज में काम करना ये हर जगह की ज़रूरत बन चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन इन मेकिंग एन एजुकेशन सिस्टम वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इट। इसमें टीचर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ टीचर्स। कोई भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन टीचर से ज़्यादा बेहतर नहीं होता। टीचर मस्ट बी ट्रेंड एंड एजुकेटेड प्रॉपरली। टीचर को ट्रेंड होना चाहिए, तरबियत याफ्ता होना चाहिए और तालीम याफ्ता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्वालिटी टीचर एजुकेशन मस्ट देयरफॉर बी आवर प्राइमरी कंसर्न। कि क्वालिटी टीचर एजुकेशन जो है ये हमारा एक बुनियादी कंसर्न है। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट एजुकेशन ऑफ द टीचर बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी कंट्री। और इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि किसी भी मुल्क में टीचर की जो तालीम है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि क्वालिटी एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। यानी क्वालिटी एजुकेशन जो है ये इस बात पर इन्हसार करती है कि क्या टीचर्स जो हैं उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन हासिल की है। एंड क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी ऑफ टीचर्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर ट्रेनिंग। और उनकी क्वालिटी जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि उन्होंने ट्रेनिंग किस तरह की ली है। अगर टीचर जो है उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी तो वो क्वालिटी टीचर बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन आगे प्रोवाइड करेंगे। टीचर एजुकेशन, द पर्पज ऑफ टीचर एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस टीचर्स हु हैव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। टीचर एजुकेशन का मकसद ये है कि इस तरह के टीचर्स को पैदा किया जाए जो पेशा वराना महारतें रखते हों। द रोल ऑफ टीचर इज़ नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टीचिंग अलोन। टीचर का रोल जो है वो सिर्फ टीचिंग तक ही महदूद नहीं है। दे नीड टू बी थारो प्रोफेशनल्स। उनको मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल बनाना है, फुल्ली इक्विप्ड विद हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, और उनको हाई तालीमी मेयार तक लेके जाना है। और इसके बाद है पैडागॉजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स।
उनको पैडागॉजिकल स्किल्स भी देनी है और प्रैक्टिकल स्किल्स भी देनी है। पैडागॉजिकल स्किल्स से मुराद ये होता है कि उनको टीचिंग मेथोडोलॉजी का भी बताना है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, किस सबक के लिए आपके लिए कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी ज़रूरी होगी। और उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि जिस उम्र के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनकी नफ्सियात क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह ज़्यादा सीखेंगे, ये भी उनको बताना ज़रूरी है और उनको प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाना ज़रूरी है। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में वी नीड टू मेक द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन मोर इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक इन आर्डर टू रिस्पॉन्ड टू दी चेंजिंग डिमांड ऑफ द सोसाइटी। माशरे की बदलती हुई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें टीचर को इस तरह की तालीम देनी है कि जिससे हमारा टीचर इनोवेटिव हो जाए, नई नए ख्यालात सोचे अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, एंड फ्यूचरिस्टिक हो और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का तयन करते हुए अच्छे अंदाज में पढ़ा सके, मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा कर सके। टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स एंड टू अपडेट द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी टीचर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए वी रिक्वायर कमिटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल कंसर्न, हमें मुतल्लिका लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। टीचर एजुकेटर thus have to be motivated enough to plan for their own personal and professional development. टीचर एजुकेटर को इस बात की ज़रूरत है कि उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपनी भी डेवलपमेंट करें और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करें। दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक चार्ज फॉर देयर ओन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और वो अपनी लर्निंग और अपनी डेवलपमेंट को बेहतर बनाने की तवक्कुआत उनसे वाबस्ता होती हैं। एज सच सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेगुलेशन आर द की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। और इसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना और सेल्फ रेगुलेटर करना, ये जो है ये कामयाबी के लिए बुनियादी चीज़ है। इफ़ेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रिपेयर्स न्यू टीचर्स फॉर ए रोल। इफ़ेक्टिव टीचर एजुकेशन जो है वो इस तरह का टीचर एजुकेशन प्रिपेयर्स न्यू टीचर्स, उनको नए टीचर्स को इस तरह तैयार करते हैं फॉर ए रोल विच इज़ बोथ कम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग। इस तरह के टीचर तैयार करते हैं जो जिनका किरदार जो है वो कम्प्लेक्स भी है और डिमांडिंग भी है। Accomplished teaching simultaneously involve command of subject matter and how to teach it to diverse students. वो इस बात का भी तयन करते हैं कि इस बच्चे को सब्जेक्ट मैटर कैसे सिखाना है। पुटिंग ऑल दिस इन टू प्रैक्टिस, इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस में रखते हुए ऑन ए डेली बेसिस, रोज़ाना की बुनियाद पर, इज़ एक्सट्रीमली डिमांडिंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में बड़ा ही अहमियत का हामिल है। द बेसिक रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इज़ टू, टीचर एजुकेशन का बुनियादी रोल क्या है? ट्रेन टीचर्स टू टीच प्री स्कूल चिल्ड्रन, के बच्चों को, टीचर्स को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो प्री स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ा सकें। ट्रेन टीचर्स टू टीच प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकें। ट्रेन टीचर्स टू टीच सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकें। ट्रेन टीचर्स टू टीच हायर सेकेंडरी चिल्ड्रन, और टीचर्स को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो हायर सेकेंडरी के बच्चों को भी पढ़ा सकें। टीचर एजुकेशन शुड कंसंट्रेट on making our teachers
टेक्नो सेवी। हमें टीचर एजुकेशन को इस तरह बनाना चाहिए कि हम अपने टीचर्स को इस काबिल बना दें कि वो टेक्नो सेवी हो, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जाने। वी नीड टू यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर आवर ओन बेनिफिट। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। टीचर एजुकेशन शुड डेवलप मल्टी स्किल्स अमंग आवर टीचर्स सो दैट टीचर एजुकेशन को मल्टी स्किल्स हमारे टीचर्स को सिखानी चाहिए सो दैट दे आर एबल टू यूज़ टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग, ताकि वो टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल कर सकें। एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, और नए इल्म की तख्लीक में हिस्सा ले सकें। टीचर एजुकेशन आल्सो नीड्स टू लुक इनटू इनोवेटिव Teacher education also need to look into innovative ways of evaluation along with teachers learning. Teacher education also needs, टीचर एजुकेशन को ज़रूरत है टू लुक इन टू इनोवेटिव वेज के जदीद तरीके इख्तियार करे ऑफ एवेल्यूएशन, बच्चों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए, अलॉन्ग विद द टीचर लर्निंग, टीचर्स की लर्निंग के साथ। चैलेंजेस इन टीचर एजुकेशन में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? इसमें सबसे पहला चैलेंज जो है वो है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी क्वालिटी की यकीन दहानी करवानी कि विद द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड द एवर राइजिंग थर्स्ट ऑन autonomy for the existing institution, it is imperative that demand would be made on the quality assurance। कि टीचर एजुकेशन में सबसे मेन चीज़ जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की है, कि टीचर एजुकेशन जो है इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि टीचर्स ने जो ट्रेनिंग हासिल की है वो क्वालिटी की तालीम है। इसके बाद है प्रोफेशनलिज्म। दो वी रिगार्ड टीचर एजुकेशन एज ए प्रोफेशन, अगरचे हम टीचर एजुकेशन को एक प्रोफेशन के हवाले से जानते हैं, वी आर डिफरेंट व्हेन वी कंपेयर आवर सेल्फ विद द अदर प्रोफेशनल लाइक मेडिसिन। हम मुख्तलिफ नज़र आते हैं जब हम अपना मवाजना दूसरे पेशों से करते हैं, लाइक मेडिसन, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, जैसे मेडिसन है या इंजीनियरिंग है। वी आर स्टिल टेंटेटिव अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग इन एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स बाय आवर स्टूडेंट्स। वी आर स्टिल टेंटेटिव अबाउट, अभी हम इस हवाले से इब्तदाई रोल अदा कर रहे हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, कि जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है और इन सर्विस ट्रेनिंग इन एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स बाय आवर स्टूडेंट्स, कि उसमें मुतलका इल्म जो है, मतलूबा इल्म जो है वो तलबा हमारे हासिल करें। अब टीचर्स में के लिए दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक प्री सर्विस होती है, मिसाल के तौर पर प्राइमरी टीचिंग कोर्स है, पीटीसी है, इसी तरह सीटी है, सर्टिफिकेट इन टीचिंग है, या बीएड है, ये आपकी प्री सर्विस ट्रेनिंग्स हैं, यानी सर्विस से पहले। और इसके बाद जब आप टीचिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वक्त के साथ साथ जब नसाब में तब्दीली आती है या कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं तो आपको रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं या इन सर्विस ट्रेनिंग करवाई जाती है। वो आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस होती है, और प्री सर्विस वो होती है, सर्विस ट्रेनिंग वो होती है जो आपने सर्विस को ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग करते हैं। द 1 year ट्रेनिंग प्रोग्राम ए प्री requisite फॉर बिकमिंग a teacher is rigorous, no doubt, but it is somewhat rigid. We are more driven by the form of the course rather than the content.
इसके बाद है ability to generate new ideas, commitment and dedication in our work is essential to make ourselves professional. हमें अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ये काबिलियत हो कि हम नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकें, हम अपने काम से कमिटेड हों और हमें अपने काम के अंदर डेडिकेट हों. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी टेक्नोलॉजी. वी वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन. हमें टीचर एजुकेशन में नई टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत है. इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग इन आवर कोर्स इज़ स्टेप इन दैट डायरेक्शन. इंट्रोडक्शन यानी आईसीटी कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है का कोर्स जो है ये इस हवाले से एक अहम कदम है. द एक्सपीरियंस सो फार shows that teacher educators are not adept at using the computer in teaching learning process, since their recently acquired knowledge is restricted only to use the standard software applications. कि हमारा टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से इतना माहिर नहीं है. टू यूज़ एंड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, और इसको मना किया जाता है टू यूज़ स्टैंडर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कि वो स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हैं वो इस्तेमाल करे. वी नीड टू बिकम मोर फोकस्ड ऑन द सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव एंड एंजॉयबल. अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद इंटरेक्टिव और एंजॉयबल बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए. टेक्नोलॉजी शुड बी अर्नस्ड फॉर इंक्रीजिंग आवर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ द न्यू नॉलेज. और ये हमें नए इल्म के फ़रोग़ के लिए टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेगी. नेक्स्ट पॉइंट है जी अट्रैक्टिंग टैलेंट. Attracting talent into the technology, into the teaching profession remains one of the major challenges before us today. Attracting talent जो है talent है हमारे लिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर में. The number of merit holders student opting for teaching profession इज़ वेरी फ्यू. कि जो मेरिट होल्डर्स होते हैं वो इस प्रोफेशन में बहुत कम आते हैं. वी नीड टू रिफ्लेक्ट दिस सिचुएशन. हमें इस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है. देयर इज़ ऑलवेज ए टॉक दैट द टीचर्स हैव टू कीप देमसेल्व्स अब्रीस्ट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स. ज़रूरत इस बात की है कि हमें टीचर्स को लेटेस्ट ट्रेंड्स की तरफ जाना होगा. नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू सेल्फ स्टडी, और उनको नॉलेज हासिल करना होगा और स्किल्स सीखनी होंगी ज़ाती तौर पर स्टडी करके. बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थ्रू पार्टिसिपेशन इन द वेरिड एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड रिसर्च. और उनको इनोवेटिव और क्रिएटिव होना होगा. कैसे मुमकिन है कि पार्टिसिपेशन इन वेरिड एक्टिविटीज़ एंड रिसर्च, मुख्तलिफ रिसर्च और सरगर्मियों में शामिल होकर. दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी कैन अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल इन प्रोफेशन हु आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ इंस्पायर्ड. ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम वी अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल, कि हम टैलेंटेड लोगों को इस शोबे में लेके आएँ जो कि सेल्फ मोटिवेटेड भी हों और सेल्फ इंस्पायर्ड भी हों. इसके बाद है जी एवेल्यूशन सिस्टम. जनरेटिंग ए रिलायबल एवेल्यूशन सिस्टम इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अस. एक काबिल एतबार जो है एवेल्यूशन सिस्टम जो है
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. टीचर एजुकेटर्स नीड टू लुक इनटू इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मेथड्स ऑफ एवेल्यूशन. टीचर एजुकेशन में ज़रूरी है कि जदीद बामकसद ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाए एवेल्यूशन के लिए, विच विल टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो कि नॉलेज की एप्लीकेशन को टेस्ट करे, अलॉन्ग विद द कंप्रीहेंशन के साथ. वी शुड एनकरेज pupils टू फेस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इफेक्टिवली. हमें बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो मुकाबले के इम्तिहानात में शामिल हों. इसके बाद है इक्विटी. द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर अस इवन टुडे इज़ द सर्च फॉर इक्विटी. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इक्विटी के लिए सर्च करें. इक्विटी रेफर्स टू द क्वालिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एबिलिटीज़ of the individual, and it also means the equity in the development of all the strata and of society. कि इसमें हमने ये देखना है कि पूरा माशरा जो है वो एक लेवल पे तरक्की करे. हेड एंड हैंड एंड हर्ट आर थ्री पावरफुल टूल्स गिवन टू एवरी वन बाई गॉड. अल्लाह ताला ने हर किसी को सर भी दिया है, हैंड हाथ भी दिया है और दिल भी दिया है. सर से मुराद ये है कि सोचने के लिए दिमाग दिया है. हैंड से मुराद है कि करने के लिए, काम करने के लिए हाथ दिए हैं. और हर्ट और एक अच्छा दिल भी दिया है कि वो कामयाब हो जाए. बट टुडे वी आर बिकमिंग ए नॉलेज सोसाइटी. आजकल हम एक नॉलेज सोसाइटी बनते जा रहे हैं. इसके बाद है नीड ऑफ द प्रेजेंट डे. मौजूदा वक्त की ज़रूरत क्या है. द स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग आर इन्फ्लुएंस्ड स्ट्रांगली बाय टीचर्स कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल. द स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग आर इन्फ्लुएंस्ड. स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग जो हैं ये मुतासर हो रहे हैं स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा, बाय द टीचर कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल. टीचर की कैपेसिटी से, अंडरस्टैंडिंग से और स्किल से. स्कूल एजुकेशन कैन अचीव द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल रिकंस्ट्रक्शंस ओनली इफ देयर आर कॉरस्पॉन्डेंस रिफ्लेक्शंस ऑफ द सेम कंसर्न्स इन द प्रोग्राम्स ऑफ द टीचर एजुकेशन. ये उस वक्त ही मुमकिन है जब टीचर एजुकेशन को अच्छे अंदाज में आप लेके चलें. ए टीचर एजुकेशन, ए टीचर, इट इज़ द पाइवट. एज द टीचर इट इज़ द पाइवट ऑन विच द आउटकम्स एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम कैन ब्लॉसम. ये ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम इस माशरे में कामयाबी चाहते हैं तो टीचर को हमें ट्रेंड करना होगा. इसके बाद है टीचिंग प्रोफेशन एंड ODL. ODL से मुराद है ओपन डिस्टेंस लर्निंग. टीचिंग प्रोफेशन एंड ODL. Now the most countries have made solid progress toward the achievement of the universal primary schooling by 2015. अब बहुत से स्कूलों ने 2015 की यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में बहुत तरक्की की है. द वर्ल्ड फेसेस टू अदर मेजर एजुकेशनल चैलेंजेस. इस वक्त दुनिया जो है दो बड़े तालीमी चैलेंजेस का सामना कर रही है. द फर्स्ट, उसमें से पहला ये है, विच रिजल्ट्स पार्टली फ्राम द सक्सेस ऑफ द कैंपेन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो कि प्राइमरी एजुकेशन की कैंपेन के नतीजे में है. इज़ टू गिव ओल्डर चिल्ड्रन. इसका मतलब है कि पुराने बच्चों को या बड़े बच्चों को एंड यंग अडल्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेकेंडरी स्कूलिंग, के बच्चों को सेकेंडरी स्कूल की तालीम हासिल करने का
موقع دیا جائے. دس از اے میسو ٹاسک. یہ ایک میسو ٹاسک ہے. ون ایسٹیمیٹ پٹس دی نمبر آف 12 to 17 years old who are not receiving education at 400 million بائنڈر 2006. 2006 کی رپورٹ کے مطابق 400 ملین بچے جو ہیں وہ جن کی عمر 12 سے 17 سال ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے. Scarcely less daunting in the second global challenge, which is the need to recruit and train many millions of teachers. اب دوسرا چیلنج اس میں یہ ہے کہ اس میں کمی یہ آ رہی ہے کہ بہت سے ٹیچر جو ہیں ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. یونیسکو ایسٹیمیٹ دیٹ سم 10 million teachers must be recruited and trained in the less than a decade. یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق that some 10 million teachers کے 10 ملین ٹیچر جو ہیں ان کو 10 سال کے اندر بھرتی کیا جائے اور ٹرینڈ کیا جائے. اس کے بعد ہے جی they will be needed to replace the large number of teachers due to retire in many countries. بہت سے ٹیچرز جو ہیں وہ مختلف ممالک میں ریٹائر ہو رہے ہیں. کمپلیٹ دی ڈرائیو ٹو یونیورسل پرائمری اسکولنگ. یونیورسل پرائمری اسکولوں کو کے کام کو مکمل کرنے کے لیے پارٹیکولرلی ان دی افریقہ اینڈ ساؤتھ ایشیا, افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں, اینڈ ایڈریس دی چیلنجز آف دا سیکنڈری اسکولنگ. یونیسکو 2008 کی رپورٹ کے مطابق یعنی افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے ٹیچر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے ٹیچر بھرتی نہیں کیے جا رہے. ٹیچر ایجوکیشن اینڈ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ ODL are separately complex and critically important fields of endeavors. کہ ٹیچر ایجوکیشن اور اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ جو ہیں یہ دونوں ہی بڑے ہی اہم پہلو ہیں ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے. Used together they have the potential to enhance the effective, efficient and equitable provision of education. ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سی ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرام کو لانچ کیا جا سکتا ہے اینڈ ٹو میکسیمائز ایکسیس, اور ان کے ایکسیس کو زیادہ کیا جا سکتا ہے ٹو سچ پروویژن بائی ویریئس کیٹیگریز اینڈ ڈس ایڈوانٹیج لرنرس. اور بہت سے کیٹیگریز کو اور وہ لوگ جن کو موقع نہیں ملا, اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں, کون کون سی ہیں جی؟ ایک ہے جی ٹیچر ایجوکیشن اور دوسرا اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ, تو بہت سی ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرامز کو لانچ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس کے ٹیچر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو دیکھیں اور پاکستان کی پوری یونیورسٹیوں کے ٹیچر ایجوکیشن کی تعداد کو دیکھیں تو میں بڑے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیچر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اس طرح اگر یہ کمبائن ہوں گے تو دونوں مل کے کام کریں گے تو بہت سی ٹیچرز کی ریکوائرمنٹس کو وہ پورا کر سکیں گے. کمبائننگ ٹیچر ایجوکیشن اینڈ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ میں اے گروئنگ لٹریچر has been devoted to reviewing the strengths and limitations of ODL in the teacher education. ایک گروئنگ لٹریچر میں اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کون کون سی ODL میں اوپن ڈسٹینس لرننگ اور ٹیچر ایجوکیشن میں کون کون سی ویک پوائنٹس ہیں, کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں.
A useful synthesis of those strengths and limitations was provided by the पैराटन 2003 2003 के पैराटन में इसकी खूबियाँ और खामियाँ जो हैं वो बयान की गई. वो फोकस्ड ऑन 3 themes requiring careful considerations by planners and practitioners. उसमें ये बताया गया कि जो प्लानर्स हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं उनको 3 बातों पर फोकस करना चाहिए. सबसे पहली बात है कि सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीचिंग एंड ऑफ ए प्रोफेशन के माशरती तवक्कुआत क्या हैं टीचिंग के हवाले से. दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग दैट प्रोफेशन, और उन स्टेक होल्डर्स के क्या असरात हैं टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से. एंड द करिकुलम ऑफ द टीचर एजुकेशन, और तीसरा इसमें यह है कि टीचर एजुकेशन का नसाब कैसा है. हायर एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हैरे 1999 traced effort to develop the teacher education program using varying degrees of the ODL in institutions as diverse as the Bangladesh Open University, in the Indira Gandhi Open University and Open University of Tanzania. ये ओपन यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस प्रोग्राम जो हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में भी, बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ तंजानिया में भी ये प्रोग्राम टीचर एजुकेशन के लॉन्च किए जा रहे हैं. The University of the South Pacific, Matthewson and Waugh 1999, and the University of the West Indies, Brandon 1999, included in the same book were ODL experience in China, Latin America and South Africa. इसके बाद कंबाइनिंग टीचिंग एंड एजुकेशन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग में some of the literature has focused on the rapidly developing technologies available to support teacher education via ODL. यानी कुछ लिटरेचर जो है ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फंग 2005 इन्वेस्टिगेटेड. फंग ने 2005 में इस बात पर तहकीक की है द यूज़ ऑफ प्रिंटेड मटेरियल in an in-service primary school distance teacher education course and found that the participating teacher agreed that the materials achieved the course objectives. उसने 2005 में एक तहकीक की थी और उसने टीचर एजुकेशन का प्राइमरी टीचर्स के लिए जो नसाब बनाया गया था उसका तजज़िया किया, तो उसने ये देखा कि वाकई टीचर एजुकेशन का जो नसाब था वो टीचर की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है. But that the distance teacher educators must find ways to encourage learners to engage in the text activities if such activities are to achieve their potential, and that research on the print material, particularly on way of achieving goals in teacher education, should not be neglected at a time of increasing use of distance education in teacher education. इसके बाद है जी न्यू मिलेनियम प्रेशर एंड पॉसिबिलिटीज. टीचर एजुकेशन इज करंटली फेसिंग ए नंबर ऑफ टेंशंस एंड प्रेशर्स हैव सम फॉर्म फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स इन द लास्ट डिकेड. पिछले 10 साल से टीचर एजुकेशन बहुत से मसाइल का सामना कर रही है, विद परहैप्स द मोस्ट इंटेंस फोकस बीइंग ऑन द इशू ऑफ टीचर क्वालिटी. जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत की बात जो है, बड़ी बात जो है वो टीचर्स की क्वालिटी की है. न्यू मिलेनियम प्रेशर्स एंड पॉसिबिलिटीज़ में द इशू ऑफ इंक्रीजिंग वेरिड डेमोग्राफिक कंडीशंस दैट हैव लेड टू स्टूडेंट्स from all over the world being in a single classroom, with the associated need of the teachers to deal with the multiculturalism whether they like it or not. तो जो मिलीनियम प्रेशर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जब क्लास हो रही होती है तो उसमें ये देखा जाता है
کہ ملٹی کلچرل لوگ وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہیز کریٹڈ اے نیو کمپلیکسٹی ناٹ فیسڈ بائی موسٹ ٹیچرس اے ڈیکیڈ or so ago. Teachers shortage in some parts of the world has led to the possibility of the teachers moving from one country to another as the demand for the teacher and associated wage rates make teaching market unlike we have experienced before. اس میں یہ بھی ٹیچرس کی ڈیمانڈ جو ہے ان کو بڑھتے ہوئے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ٹیچر جو ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ڈیلی جو ان کو پیمنٹ ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے. ایز ٹیچر انکریزنگلی آر بلیمڈ فار لیک آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس ایز پولیٹیشنس چوز the offset of the any responsibility they have for the conditions under which teachers work. So too teacher educators are targeted as begin one of the problem associated with the what is perceived to be low level of student achievement. اس کے بعد فالوئنگ آر دا میجر ایشوز ان دا ٹیچر ایجوکیشن. ٹیچر ایجوکیشن میں مندرجہ ذیل بڑے مسائل ہیں. گلوبلائزیشن اینڈ ڈائیورسٹی. انکریزنگ گلوبلائزیشن ہیز impacted on teacher education in terms of teachers now having the to understand and cater for diverse population. In certain parts of the world there are no classrooms where a multitude of language are spoken. یعنی اب انٹرنیشنل لیول بہت سی ایسی کلاسز ہو رہی ہیں جس پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اینڈ ویئر ڈفرینٹ ریلیجیس اینڈ کلچرل انڈرسٹینڈنگ مسٹ بی کنسیڈرڈ وائل ٹیچنگ. اور آپ کو پڑھاتے ہوئے کلچرل انڈرسٹینڈنگ کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اسٹینڈرڈس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. دا اسٹینڈرڈس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی موومنٹ which started in schools more than a decade ago. کلچرل اور اسٹینڈرڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جو کام جو ہے پچھلے 10 سال کے اندر شروع ہوا ہیز نو مووڈ ٹو دی ٹریننگ آف ٹیچرس ایز دا نیکسٹ اسٹیپ ان دا پروسیس. It has been argued that there are a number of factors that have led to increasing the surveillance of the teacher education. Among these are deep-seated and growing distrust of teacher education, a change in locus of control with the national policy emerging as dominant influence, restructuring of licensing and governance, and reconceptualizing the nature of the standard with the performance and outcomes assuming a preeminent رول. اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ٹیچرس ایجوکیشن میں اسٹینڈرڈس اور اکاؤنٹیبلٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ٹیچر پریپریشن. دا کنسرن آئیڈینٹیفائڈ ان دا پریویس 2 سیکشنز. پچھلے 2 سیکشنز میں جس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا انکریزنگ گلوبلائزیشن اینڈ ڈائیورسٹی اینڈ فوکس آن دا اسٹینڈرڈس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی for teacher education come to the time when many western nations are facing a teacher shortage and unprecedented proportion. آج بہت سی ویسٹرن نیشنز جو ہیں وہ ٹیچرز کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. اس کے بعد ہے ٹیچر انڈکشن. ایجوکیشن سسٹم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز need to support the induction of young teachers into the workforce in a way that ensure their retention over time. اس کے بعد ہے لیون اینڈ راک 2003 پیج 135 آرگو. یہ دونوں اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ دیٹ ریسنٹ اسکالرشپ آن پروفیشنل ڈیولپمنٹ فار ٹیچرس کال فار چینج.
according to Spark and Hirish, it is time to find ways to move beyond the dominant training focused models of professional development to modes and support learner centered views of the teaching. Lieberman 1995 characterized effective professional development as that which is grounded in inquiry. वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड जो टीचर एजुकेशन है उसके लिए पस पर्दा क्या है, इंक्वायरी है, सवालात पूछना है, रिफ्लेक्शन है, उसके बारे में गौर करना है कि मेरी टीचिंग कैसी रही, एंड पार्टिसिपेंट ड्रिवन एक्सपेरिमेंटेशन है, और इसके बाद है नेमिंग द रोल ऑफ टीचर एजुकेशन एज एन अप्रोप्रिएट मीन्स. इसके बाद है जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होता है? टीचर जब अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेता है कि टीचर एजुकेशन जो है वो टीचर इस बात का जायज़ा लेता है कि उसकी कारकर्दगी कैसी रही. एंड रिसेंट टाइम्स मौजूदा वक्त में देयर हैज़ बिन कॉल फॉर चेंज इन टीचर एजुकेशन इन द वेज दैट विल promote teachers being much more reflective in the practice. Argue teacher education programs need to link theory and practice. इस बात पे वजाहत की जा रही है, बताया जा रहा है कि थ्योरी और प्रैक्टिस को टीचर एजुकेशन में इकट्ठा किया जाए, to integrate the two in such a way that it leads to integration within the teacher. इसके बाद है जी इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. द लास्ट 2 decades have seen a dramatic increase in the use of increasing technologies of various kinds. The old image of the teacher with a piece of chalk and a few textbooks is now well in the past. کہ جو پرانا زمانہ تھا جب ٹیچر کے ہاتھ میں ایک چاک ہوتا تھا اور وہ وائٹ بورڈ پہ لکھا کرتا تھا، یہ اب ماضی کی بات ہو چکی ہے. دا انٹروڈکشن آف دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان پارٹیکولر فائنڈ ٹیچر یوزنگ پاور پوائنٹ فار دیئر کلاسز. اب ٹیچر جو ہے وہ اپنی کلاسز کو پڑھانے کے لیے پاور پوائنٹ کا استعمال کر رہا ہے. ایکسیسنگ نالج فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ وائر دا ورلڈ وائڈ ویب سے وہ پوری دنیا سے علم حاصل کر رہا ہے. بینگ ای میلڈ بائی دا اسٹوڈنٹ at all hours of the day and night and accessing vast database to enter their data related to the student progress, all the part of parcel and teaching. آج ٹیچر جو ہے ورلڈ وائڈ ویب سے انفارمیشن لے رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کی جو میلز اس کو آ رہی ہیں اس کا ان کا جواب بھی دے رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.